Good morning everyone. How are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have already completed with the last chapter, that was machine. So in this video, I'll be starting with a new chapter, that is reflection of light. As you all know, we have already studied about light in your previous class, that is in class 9. But in class 9, we have studied about reflection only. So a part of reflection is there in this topic, but most of the part you have to study about refraction of light. So if we talk about reflection के बारे में बात करें तो in case of reflection what happens? The ray of light starts from one medium and get reflected in the same medium only. That means if process of reflection occurs, then in that case the light get rebounds. That means it will be reflected back in the same medium only. Okay, but if we talk about refraction, there will be the change in the medium. The refraction process always occurs in between two medium. It can be air to water, air to glass, glass to air, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन. फिर मैं आपको रे डायग्राम के थ्रू आपको केसेस पढ़ाऊंगा. ठीक है, then we will be discussing about refractive index, laws of refraction and some of the relation that we will discuss like V equal to F lambda. So let's start with the video. चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में व्हाट इज रिफ्रैक्शन. तो अगर हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट when a ray of light travels from one optical medium to another, and there will be the change in the path of light just because of optical density. That means जो भी मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, लाइक अगर एयर टू वाटर ट्रेवल की या एयर टू ग्लास ट्रेवल की, तो आपको ये चीज पता होगा स्पीड ऑफ लाइट ये वेरी करती है. स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो इन केस ऑफ एयर ऑब्लिक वैक्यूम, अगर हम एयर एंड वैक्यूम की बात करें दिस विल बी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इन केस ऑफ अगर हम वाटर की बात करें, अगर वाटर की बात करें स्पीड की, तो ये हो जाएगी हमारी 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड इफ विल टॉक इन केस ऑफ क्या ग्लास की बात की जाए तो ग्लास के केस में 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. दिस शोज दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट when it travels from one optically rare medium to optically denser medium, then there will be the change in the path that we'll study with the help of a ray diagram. तो ये हमारी बेसिक चीज हो गई जिसमें हमने आपको रिफ्रैक्शन बताई. अब इसको हम लोग थोड़ा सा रे डायग्राम से पढ़ेंगे और सारे फिर चीजें समझेंगे कि कैसे कैसे चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट होता है. सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें केस नंबर 1, ये हमारा मीडियम है. ठीक है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई. ठीक, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे और ये क्या हो गई, बेंड हो गई ऐसे. दिस इज एंगल आर और ये वाला जो पोर्शन है आपका ऐसे, ये एक्चुअल पाथ है, ये आपका डेल्टा होगा. तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये वाला हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये आपका क्या हो गया, बाउंड्री हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है. तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आपको चीज देखना है कि व्हेन दिस रे ऑफ लाइट गेट इंसिडेंट ऑन दिस बाउंड्री, this is medium number n1 and this is medium number n2. So the ray has been traveled from n1 to n2. Then in this case what will happen, the original path of this ray will be like this. ये original ray है आपकी ऐसे जानी चाहिए, but there will be slight bending towards the normal. This ray will get bent towards the normal, and if we mathematically say this bending or this deviation in this ray will be equal to delta बराबर I minus R, which shows that angle of incidence is greater than angle of refraction. And one more thing that you have to
टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि अगर जब यहाँ पर ये लाइट स्ट्राइक करेगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन अ पार्ट ऑफ दिस लाइट विल ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बट दिस विल बी स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड. So partial reflection will occur and partial refraction will occur. So this is the phenomena of refraction. That means when the ray of light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then there will be the change in the path of light, and it is just because of the change in the optical density. Like this medium will be optically more denser than the previous medium. तो ये हमारा केस नंबर 1 हो गया. और मैथमेटिकली अगर बात करें तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस आर. दिस शोज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन दिस रे ऑफ लाइट हैज बीन ट्रेवल्ड फ्रॉम N1 to N2. नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड केस. अगर सेकंड केस की बात की जाए तो सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में भी अगर हम लोग ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, ये है हमारा डायग्राम, ठीक है. ये रे ऑफ लाइट गई, जो हमारी रे है वो ओरिजिनल ऐसे है मान लीजिए, ठीक, लेकिन ये क्या होगी, ऐसे चली जाएगी. तो इस केस में क्या हो गया, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ये आपका हो गया, ये सेम वही है, बाउंड्री है आपकी, ठीक है, नॉर्मल रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, यहाँ पे भी पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पर इस केस में डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई, that is R is greater than I. So in this case what happens, यहाँ पे N2 से N1 में आप आए, the ray has been travelled from N2 to N1, that means from a optically denser medium to rarer medium, again the speed of light will get increases. That shows that if a ray of light travels from optically rarer medium to a denser medium, then the speed of light decreases, as a result of which the ray get bends toward the normal, and when it travels from N2 to N1, that means optically denser medium to a rarer medium, then the speed of light get increases consequently just because of the density of the medium. ठीक है, तो यहाँ पे केस में हम लोगों ने ये बोला जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा आपका, उसमें R ग्रेटर देन I होगा. ये आपका सेकंड केस हो गया. नाउ द थर्ड केस जिसमें रे आपकी अनडेविएटेड होगी, वो वाला केस भी पढ़ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये वाला. When case number 3, when a ray of light gets undeviated, तो इस केस में ऐसा डायग्राम बनेगा आपका. ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई, ये एंगल R हो गया, ये इंसिडेंट हो गया. तो एंगल I इक्वल टू 0 एंड एंगल R इज इक्वल टू 0. ये केस होता है, तो आपको याद रखना है कि आपकी रे अनडेविएटेड हो जाएगी, मतलब इसमें ना यहाँ बेंड होगी ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, तो आपको लिखना है देयर आर टू कंडीशन, एंगल I इज इक्वल टू 0 एंड एंगल R इज इक्वल टू 0. और सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन ये होती है द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम travel within the same medium. The main thing is that within the same medium. अगर हम लोग बात करें तो ray must travel within the same medium. This is only possible when angle I is 0 and angle R is 0. तो ये हमारे 3 केसेस से इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को रिफ्रैक्शन में पढ़ने थे. अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स यूज हो रही है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दैट वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10. नंबर 1, द इंसिडेंट रे. जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे all lies in the same plane. इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बेसिकली सेम प्लेन के सारी चीजें लाई करेगी, नॉर्मल रे भी करेगी, इंसिडेंट रे भी करेगी एंड रिफ्रैक्टेड रे भी करेगी. सेकंड मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज कॉल्ड एज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. कभी कभी बोर्ड में डायरेक्टली डिफाइंड स्नेल्स लॉ 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग यही बोलेंगे
कि सेकंड लॉ जो है वो स्नेल्स लॉ ही है, जो कि बेसिकली इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी से हम लोगों की डेफिनेशन निकल के आती है कि म्यू इज इक्वल टू n1 by n2, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट in air oblique vacuum divided by speed of light in another medium। तो ये हमारा हो गया बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। अब यहां से एक रिलेशन निकल के आती है जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, जहां पे सी आपको याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम है, और वी आपकी किसी में भी हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करें तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ये चीजें याद रखनी है आपको। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू विल वॉच माई वीडियो thoroughly, and whatever doubts you are having regarding this topic, you will definitely ask in the live class or you will personally test me. Thank you for today.